नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम और राज कुशवाहा को नहीं मिली राहत। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन की पुलिस हिरासत, अन्य 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में बोली उमा रघुवंशी, अपने बेटे के लिए लगाई न्याय की गुहार। कहा पुलिस को बहुत ज्यादा गुमराह कर रही सोनम। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा 11 साल के कार्यकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए हुए ऐतिहासिक काम। मध्य प्रदेश में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। एक युवक के साथ की जमकर मारपीट, पुलिस ने भी दर्ज नहीं की रिपोर्ट। दरभंगा में एक दुकान में लगी भीषण आग की चपेट में आकर 5 दुकानें जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मेघालय में शिलोंग की जिला सत्र अदालत ने राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं वकील तुषार चंदा ने कहा कि 3 अन्य आरोपी आकाश राजपूत, विशाल राजपूत चौहान और आनंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसके साथ ही ईस्ट खासी हिल्स में एसपी विवेक सिंह ने कहा कि हमने 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है क्योंकि हमारी टीम अभी भी इंदौर में है। Court has remanded this Raj Kushwaha and this Sonam for 2 days police custody and other accused for 14 days judicial custody. That's all. Sir, please tell me what's the grounds? Grounds. This is under investigation. Sorry. I cannot give any statement which is under investigation. Okay. Sorry. So we asked for 2 days. We've only finished 8 days of judicial custody, of police custody, and we asked for 2 days police custody because our team is still there in Indore. We need to develop more things, and as and when we get more inputs from them, then we can question these people. After we actually have got their statements and the examination of these people, then we'll do analysis. That's why we've taken only 2 days. And if required, we will take more. So that's why we've reserved the rest of the days. The rest have been sent for judicial custody. But after we have done our work with Sonam and Raj, then probably we'll revert back to the other 3 and ask for police custody again because much needs to be done also on the reconstruction bit. So the reason for sending them to judicial custody is that you are happy with the investigation into the 3? No, the investigation is in progress, but something we need to do more on that front. And most probably SIT will be taking police remand later for them. So what about the Sonam phones? Did police recover the phones? See, we have not recovered the phone. We have she had 3 phones and 2 phones destroyed and thrown, and 1 phone our team is still looking for it where it is, because we believe the phone and the jewellery which actually Sonam had taken from there and which was not found in the flat has probably been whisked away to some other place. So reports are coming that one particular bag has been seen with Sonam, a black color bag, where she was taking a thing from this Shillong to Indore. She was taking. So any update or on this, sir? Like I said, we are examining the footages from there, and team and crime, Meghala police team and crime branch Madhya Pradesh, they are studying these footages and all that, and we will see whether it was passed on to anybody. But it is a fact that all things in that flat have been taken away and that flat has been left clean. Sir, call details are in Sanjay Verma and See, I don't know where from which end you've got these call details and how credible they are. And since yesterday, a lot of people have been calling me about Sanjay Verma, and I've said also that Sanjay Verma is just a fictitious name which is registered in Truecaller, and the real person holding that SIM number is actually Raj Kushwaha only. So the 119 calls has been made to Raj only, sir. See, the tally, I'll not be able to give you a tally, and I don't know where you've got that, and I don't think so that's credible also, wherever you've got the call tally from. But I can tell you that the tally of calls between Raj and Sonam is huge, so the frequency of calls is huge. Sir, Another development I'd like to inform you all. Today, the SIT team and SIT team in Madhya Pradesh
along with the crime branch, have identified the driver of the Ertiga, which actually where Sonam was taken to. She was supposed to be taken to Ballia, and another taxi arranged from Ballia, but that person from Ballia didn't want to take her because she didn't have any papers. So he called this taxi driver. The name of the taxi driver is Pramod Saha, alias Piyush, to come and pick her up again. And she was actually from Ballia. She had reached Ghazipur, and so he had reached Ghazipur. And when he received the call from Raj that you make her surrender because things have gone wrong out there, and let her come up with this story. So that's how she called up from the dhaba. सर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के प्लानिंग की गई थी 5 लोगों ने, ऐसा कुछ इंदौर से रिपोर्ट्स आ रही। मेघालय में राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपियों को हिरासत में भेजे जाने पर राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम 2 दिन में कुछ ना कुछ तो बताएगी ही, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रही है। और राजपुष्पा का है, बाकी लोगों को चारों को भेज दिया है। सोनम से अभी और पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए सोनम और राज को उन्होंने क्या कहते हैं पुलिस रिमांड पे 2 दिन की और मांगा है, तो कोर्ट से 2 दिन की जमानत वो क्या कहते हैं पुलिस रिमांड मिला है क्या कुछ? हाँ, तो 2 दिन में और भी कुछ बताएंगी वो जो भी है ना, मतलब जो पीछे का, तो 2 दिन में कुछ न कुछ तो बताएगी, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्यों उनको जो सच्चाई मालूम वो सारी बताना चाहिए। आपको लगता है अभी भी कोई काफी मामले की पूरी बात नहीं आ पाई है कि किस वजह से उसने क्यों मारा राजा को, ये जब तक नहीं बोलेगी ना, जब तक तो उसको रिमांड पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल देगी तो अपन सामने क्लियर हो जाएगा ना कि राजा का कारण क्या था, राजा को क्यों मारा। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के 11 साल के गौरवमय और ऐतिहासिक कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड लेकर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जेपी नड्डा की अध्यक्षता में गांव-गांव जा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की 11 साल के गौरवमय ऐतिहासिक कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में गांव-गांव जा रहे हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसंपर्क के कार्यक्रम कर रही है। उसी के तहत ये दिन हम हर शक्ति केंद्र पर चौपाल के कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं अभी चौपाल के कार्यक्रमों से होकर आया हूं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 11 वर्षों में सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण पर ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं, 3 करोड़ गरीबों को मकान मिलने वाले हैं, 25 करोड़ गरीब एम्पावर्ड हुए हैं। करोड़ों घरों पर, 15 करोड़ से ज्यादा घरों पर पीने का पानी पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक नलके से पहुंचा है। लगभग 12 करोड़ घरों में शौचालय, 12 करोड़ घरों में रसोई गैस, 55 करोड़ से ज्यादा के लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस, 81 करोड़ गरीबों के घर पर भोजन। ये ऐतिहासिक कार्य है। जहां गरीब कल्याण के काम हुए वहीं पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की चमक व धमक आज पूरे विश्व के अंदर गूंज रही है। चाहे वो अर्थ क्षेत्र हो, आज भारत 12वें 14वें नंबर से लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था से निकलकर, फ्रजाइल 5 से निकलकर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है और आज भारत विश्व की सबसे ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। हम 5वें नंबर पर पहुंचे थे। अभी नई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी 4थी अर्थव्यवस्था बनी है। भारत रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला देश बना है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत की सुरक्षा मामलों पर धमक पाकिस्तान सहित पूरा विश्व सुन रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है
कि आतंक के ठिकाने, आतंक की फैक्ट्रियां विश्व के किसी भी कोने में हो। पाकिस्तान आतंकियों को कहीं भी छुपाए, वो चाहे भावलपुर हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, भारत की सेना के निशाने पर हैं और हम उनको तहस नहस हमने किया है। 100 से ज़्यादा आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने मिट्टी में मिलाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के गौरव की गाथा है, हमारे वीर सैनिकों के शौर्य का प्रमाण है। पूरे विश्व को हमने बता दिया है कि पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्रियां चला रहा है, उन आतंक की फैक्ट्रियों को हमने मिट्टी में मिलाकर बता दिया कि भारत की सेना के निशाने पर पाकिस्तान का कोना कोना है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे जिले के अंदर अलग अलग निर्माण कार्यों के लगभग 267 करोड़ से